I mean, I have one more question, because flights is one thing which actually hits maximum on your budget. Yes. How do you plan your flights? Do you plan a direct flight or a connecting flight via some city? Because normally a connecting flight is kind of cheaper. Flight. Have you utilized any opportunity of travel there also? Because considering you don't leave any opportunity to travel, I'm 100% sure there's a story there. And I'll move on to my next question after this. Yeah, Okay. share it. Sure. So whenever I'm planning my flight, जब भी मुझे कोई flight book करनी होती है, then there are few things, time and money. We need to keep both in mind, and we need to see what we have more right now and what is our priority currently. पैसा की ज़्यादा प्रायोरिटी है या टाइम की ज़्यादा प्रायोरिटी है, बिकॉज आई थिंक प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं, हम छुट्टी लेते हैं, कुछ दिन की छुट्टी मिलती है और उसी छुट्टी में हमें अपना ट्रिप प्लान करना होता है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है in that case. So I personally prefer, of course, first thing is direct flight. They are always good. If you are getting them at reasonable prices, definitely go for it. Go for direct flights. When it comes to international travel specifically, that's when I think domestic flights, in case of domestic, I think it's always good to have a direct flight. I would always prefer that, and thankfully, because we stay in NCR region, so mostly Delhi has direct flights to most of the cities in the country. So it gets easier, of course, to take direct flights. अगर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो of course you'll have to take a connecting flight. Now coming on to if you are going internationally, okay, there majorly I think this thing comes that whether you should go for a direct flight or a connecting flight, and connecting flights are most of the time less expensive. तो वन थिंग आई फील इज, अगर वो जो ट्रांजिशन है और लेओवर है वो 2 से 3 घंटे का है, देन आई फील इट्स फाइन, यू नो, इट्स गुड टू टेक अ कनेक्टिंग फ्लाइट. उससे आप एक नया एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेते हो, एक नई सिटी में या नए देश में जहाँ पे भी आपका लेओवर हो रहा है, वहाँ पे आप एक नया एक्सप्लोर. एंड आई थिंक एवरी एयरपोर्ट जिस भी कंट्री का है, दे हैव देयर एसेंस ऑफ दैट कंट्री. तो दैट वेज आपको एक और कंट्री का थोड़ा सा एक, चाहे वो कुछ घंटे कुछ टाइम के लिए ही क्यों नहीं हो, आपको थोड़ा सा एक फील आ जाता है. तो आई फील यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट कनेक्टिंग फ्लाइट एंड हैव अ लेओवर ऑफ 2-3 hours in any particular city that you're going. Other than that, one thing also that I've seen is, and I tried to implement in one of my travel was, अगर आपका लेओवर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, like for example you have a layover of like 12 hours, more than 12 hours or 15, ऑलमोस्ट एक दिन ही हो गया. हाँ 15 hours, ऐसा कुछ अगर आपका लेओवर ज़्यादा हो रहा है. You have had this kind of a layover? So I have honestly not done that travel yet. It is part of my itinerary. Like I made an itinerary. Okay. तो उसमें I had kind of planned it in that way. So that was basically for Dubai. Ideally everyone will take a direct flight to Dubai because बहुत कम ड्यूरेशन की फ़्लाइट है, इतना कोई कंसर्न नहीं है. बट जब मैं वो प्लान कर रही थी, तो एक्चुअली डायरेक्ट फ्लाइट्स वर एक्सपेंसिव एंड प्रिटी एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था. एंड एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी विच वॉज कमिंग मच लेसर, एंड इट वॉज थ्रू ओमान, मस्कट. उसके थ्रू वो फ्लाइट जा रही थी एंड उसका लेओवर था अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे का, 17-18 घंटे का. सो इट जस्ट स्ट्राइक मी दैट अगर मस्कट ओमान के थ्रू जा ही रही है फ्लाइट, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू सी द ड्यूरेशन ऑफ लेओवर ऑल्सो. वो अगर रात का लेओवर है तो आप कहीं घूमने तो नहीं जा सकते, अल्टीमेटली वो आपका वेस्ट हो जाएगा. तो थैंकफुली वो जो लेओवर पड़ रहा था वो ऐसा था कि अराउंड 11:30-12 बजे ओमान में लैंड होंगे, एंड फिर लेट नाइट ओमान से निकल के दुबई की फ़्लाइट है. सो इट जस्ट स्ट्राइक मी कि अगर एक दिन पूरा ओमान में जा रहा है, और ऑफ कोर्स यू नीड टू सी कि आपके को पूरे ट्रिप में टाइम कितना है. डू यू हैव अ टाइम टू गिव वन डे टू अ ट्रांजिशन डेस्टिनेशन और नॉट. आपको ट्रांजिशन प्लेस को टाइम दे सकते हो कि नहीं दे सकते. लाइक इन दिस केस आई थॉट कि अगर एक दिन ओमान में मिल ही रहा है तो व्हाई नॉट just explore Oman also एक दिन में. मतलब I think I'm sure yeah. So and बहुत सारी जगहों में आपको ट्रांजिशन वीजा मिल जाता है. कुछ जगहें तो इनफैक्ट डायरेक्ट दुबई एंड वाया ओमान कितने रुपए का डिफरेंस था? उस ड्यूरेशन में जो मैंने देखा था तो काफ़ी फ़र्क था. अगर डायरेक्ट फ्लाइट जो दुबई की पड़ रही थी उस टाइम पे, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 43K टू एंड फ्रो रिटर्न टिकट, एंड ओमान के थ्रू अगर जाते थे तो वो 23 की पड़ रही थी. सो देयर वाज 20,000 का फ़र्क
This was huge, and it was actually a peak time also. तो direct flights were expensive. तो that's how I planned कि अच्छा अगर ओमान के थ्रू जाते हैं, प्लस एक नया देश एक नई शहर की भी थोड़ी वाइब आ जाएगी, वो भी देख लेंगे, और दुबई तो अल्टीमेटली जा ही रहे हैं. सो इट रियली डिपेंड्स व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर फ्लाइट्स. यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. आपके पास टाइम कितना है ओवरऑल, और आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है या फिर टाइम ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है. यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देम कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर आपका ओके, इफ़ यू हैव अ लिमिटेड टाइम एंड दैट इज़ ऑल यू हैव, देन डेफिनेटली गो फॉर डायरेक्ट फ्लाइट. ओके, बट अगर थोड़ा बहुत आप you have a flexibility of time a bit, then try these different things. Thank you so much for watching this entire clip. अगर आपको और ऐसे insightful clips देखने हैं, don't forget to hit the subscribe button for the solo clips. और अगर इसी clip का पूरा एपिसोड आपको देखना है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. Please click and enjoy. Thank you for staying with us.